Students, so today we will discuss the chapter cyber ethics, and this is also the part of unit 3. As we have discussed, we have completed unit 1, unit 2, and then we are here to discuss the unit 3. So in today's video class we will be discussing the introduction of this cyber ethics, then cyber ethics for the e-commerce and other ethical issues. Only 3 topics today we will discuss in this video class, and remaining 2 topics will be discussed in the next video class, because this is very important topic, and nowadays everywhere it is being used. So you must be aware about what is cyber ethics and what is ethical issues. Means whatever the terminologies have been used in this chapter, you must be aware of this, because they are very useful in your daily life also. So just starting introduction of the cyber ethics. What is this? So as you know, the present era is the era of information. Information is a big asset in this era for anyone. If you have information, it means you have the assets. You can deal in today's world and you can survive easily with the help of this information. So everywhere we have the information, and we have a very powerful source to get the information, and that is the internet. Means the internet, जो इंटरनेट की बात करते हैं ना, with the help of internet you can get information from all around the world. That's why we must understand what is cyber ethics. तो जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, easily you can access anything. So what we were discussing, so everything is available on the internet. So it is very important to behave in a decent way on the internet. So the cyber ethics is related to our online behavior, what to do and what should be there, and how it should be proposed, and how it must be conveyed, how it must be protected, and what is to be protected on the online. It is your information, because on internet your information is you. Whatever the information you are giving there, so that must be protected, that must be safe, and how that data is being dealt, that is also very, very important. So all these aspects we will discuss in this cyber ethics chapter. So the first topic, which is that cyber ethics for e-commerce. You know, whenever we use commercial activities, means whenever we do shopping, or whenever we deal with the money, means by selling goods or selling any services, means buying and selling process is being on with the help of internet. That is known as e-commerce. So in a simple line, it is written as e-commerce refers to the occurrences of the commerce activity online or electronically. So जब भी आप ऑनलाइन में आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू मेक पेमेंट्स. अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, देन यू हैव टू पे. इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, देन यू विल रिसीव द पेमेंट्स. तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आपको या तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है. सो एनीथिंग कैन बी हैपन. So जब भी साइबर एथिक्स की बात की जाती है, whenever we are talking cyber ethics for the e-commerce, it means it is to secure your payment, to protect your identity, and to make sure that you are not being cheated or you are not being fooled. Means whatever the thing you are paying for, that must be delivered to you. अगर आप सर्विस परचेस करते हैं तो वो सर्विस आपको मिलनी चाहिए. अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सामान भी आपको मिलना चाहिए. दिस इज द यूज ऑफ साइबर एथिक्स. आप रियल लाइफ में भी वी यूज टू टॉक अबाउट द एथिक्स,
Same thing here. Here it is related with the internet activity, that way it is known as the cyber ethics. So see, and the next what we can do, the first of all is the privacy. Sometimes nowadays it is being pronounced privacy, but earlier we used to say it is privacy. So however you feel comfortable. And so the privacy, what is privacy? Privacy is the Privacy is the protection of personal information given online in e-commerce, especially it is related to a company's policies on the use of user data. भाई जब भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, whenever you are going to purchase anything online, तो आपको क्या करना पड़ता है? First of all, you have to create your account. कुछ वेबसाइट्स आपको ऑफर करते हैं, you need not to create your account, you can shopping as a guest also. Okay, no issue. But आप एज अ गेस्ट शॉपिंग करें या फिर आप एक अकाउंट क्रिएट करें, कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो उस कंपनी के साथ. एंड व्हाट इज दैट? आप अपना नाम शेयर करते हो, योर नेम, योर एड्रेस, योर पेमेंट डिटेल्स, आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का डिटेल्स शेयर करते हैं, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर दैट. ऑल दिस डेटा मस्ट बी कीप्ड सेफली, या फिर ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द यूजर्स दैट हाउ दिस डेटा विल बी कीप्ड. इस डेटा को वो कैसे सिक्योर रखेंगे, या फिर उस डेटा के साथ वो कैसे डील करेंगे, दे मस्ट इन्फॉर्म यू. और जो वो टर्म्स कह रहे हैं, मीन्स वॉट एवर दे आर प्रॉमिसिंग, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड. सो दिस इज द टर्म रिलेटेड विद द प्राइवेसी. मेनली जो भी आप डेटा शेयर करते हैं, वॉट एवर द डेटा यू आर शेयरिंग विद द कंपनी टू परफॉर्म द ई कॉमर्स एक्टिविटी, दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड. यही आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है. एंड इट इज रिलेटेड टू द कंपनीज पॉलिसीज ऑन द यूज ऑफ यूजर्स डेटा. और कंपनी को क्लियरली आपको बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना होगा कि वो आपके डेटा को कैसे स्टोर करेंगे या फिर आगे इस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं. मीन्स क्या वो डेटा को थर्ड पार्टी को सेल करेंगे या नहीं करेंगे. वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, दे हैव टू टेल यू और दे हैव टू शेयर विद यू इन एडवांस. ऐसा नहीं वो आपका डेटा किसी और को सेल करके फिर आपको बताएंगे हमने आपका डेटा सेल कर दिया. नो, वो डेटा आपसे ले रहे हैं तो वहीं पे उनका प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा होगा साफ साफ कि ये डेटा हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटाबेस पे होगा, या जो भी वट एवर दे आर गोइंग टू डू विद योर डेटा, दैट इज क्लियरली रिटन देयर. और अगर वो उस चीज़ को नहीं पूरा करते, सो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. सो इट इज क्लियरली, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ कि हाउ what is privacy and what is the importance of this privacy. See the next points, how to safeguard the user privacy. To ensure that the user privacy is not compromised, following measures must be taken. जब भी आप बात करते हैं कि पॉलिसी को कैसे इंश्योर करें, कैसे हम प्राइवेसी को सेफगार्ड करें, जो भी यूजर ने डेटा दिया है उसको हम कैसे सेव करके रखते हैं. सपोज यू आर द कंपनी, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी. एंड सपोज यू आर द कस्टमर, तो भी आपको ये जानने का अधिकार है कि कैसे डेटा सेव करके रखा जा रहा है. तो हियर वी हैव सम पॉइंट्स डिस्कसिंग दैट वी विल गेट अ आइडिया दैट हाउ वी कैन स्टोर, हाउ वी कैन सेव द डेटास provided by the users, provided by the customers. The first point, the merchant or the seller must clearly state about how the user data will be used in the terms and conditions of its site. Before this I was telling you, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं बता रहा था आपको कि जो भी वेबसाइट है, जो भी आप डेटा शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज है वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है, और उनको लिखना भी चाहिए. अगर इफ दे हैव नॉट रिटन, दे मस्ट राइट देयर हाउ दे विल डील विद द डेटा टेकन बाय यू. जो आपसे डेटा ले रहे हैं, गिवन बाय यू, नॉट टेकन बाय, गिवन बाय यू. The second point, the merchant or seller must ensure that the user has gone through the terms and conditions given on its site prior to making any transaction. आपने देखा होगा जब भी आप किसी जगह पे कुछ करते हैं, कुछ भी आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो एक लाइसेंस एग्रीमेंट आता है, प्राइवेसी पॉलिसीज वहाँ पे लिखी होती है, यूजर पॉलिसीज लिखी होती है. यू हैव टू जस्ट क्लिक यस, एक्सेप्ट. आप अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ आप जो भी कह रहे हैं हम उसको मानते हैं, और फिर हम उसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. इन द सेम वे आपकी जब प्राइवेसी की बात आती है, आपके जो डेटा को सिक्योर कर, तो यूजर जो भी आपके मर्चेंट हैं या जो सेलर हैं, दे मस्ट इंश्योर
दैट द यूजर हैज़ गॉन थ्रू द टर्म्स एंड द कंडीशन, मतलब वहाँ पे भी एक चेक मार्क लगाना चाहिए कि हाँ हमने ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ लिया, हमारा डेटा के साथ क्या किया जाएगा, हाउ आवर डेटा विल बी डील्ड बाय दिस कंपनी आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। यूज़र उसको पढ़े, यूज़र उसको एक बार एक्सेस जरूर करे, ये भी कंपनी को इंश्योर करना चाहिए, सो दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आपको बता दें, वो आपको अवेयर कर दे कि हाँ हम आपके डेटा को ऐसे रखेंगे, ये करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द मर्चेंट मस्ट अस्योर द यूजर अबाउट डेटा सेफ्टी बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स सच एज HTTPS प्रोटोकॉल एंड अदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म सो दैट यूजर्स डेटा इज सेफ फ्रॉम हैकर्स टू। भाई जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे डील कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द फिजिकल, दैट इज द वर्चुअल कंपनी। आप इंटरनेट पर डील करें तो आप कंपनी के ब्रांच ऑफिस के सामने तो नहीं खड़े हैं, तो आप जब भी पेमेंट करेंगे विद हेल्प ऑफ इंटरनेट करेंगे। तो जब आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ये मर्चेंट के या फिर जो सेलर है वो आपको एक इतना इंश्योरेंस मिलना चाहिए, अश्योरेंस मिलना चाहिए कि वट एवर द डेटा यू आर शेयरिंग ओवर द इंटरनेट दैट इज ऑल्सो सेफ। तो कैसे कर सकते हैं? HTTPS प्रोटोकॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दैट इज HTTPS hypertext transfer protocol, secure socket layer, different protocol. Another protocol is mixed with it. We have discussed before in our HTML chapter also, in our HTTP chapter, HTML. और भी बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैं जिसको कंपनी को या फिर आपके सेलर को, या अगर आप ही कंपनी तो आपको ये यूज़ करना चाहिए सो दैट कस्टमर्स कैन ट्रस्ट ऑन योर पेमेंट लिंक और वो आपको ऑनलाइन पे कर सकें। नॉट ओनली इट इज़ द मैटर ऑफ ट्रस्ट ओनली, जब भी आप HTTPS या फिर और कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं तो ये एक सिक्योरिटी देता है कि जो भी डेटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो सिर्फ आप तक ही पहुंचेगा, बीच में कोई इंट्रूडर या फिर कोई हैकर अगर है भी तो ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा और दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा। The fourth point is that the user must go through the terms and the conditions of the seller or merchant site before providing any sensitive information and make sure that the site is a safe site by checking HTTP protocols and the padlock etc. अब ये अभी तक तो क्या थे, मर्चेंट को ये करना चाहिए, मर्चेंट को वो करना चाहिए, भाई वो सब कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट जो भी हम साइट पे ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो HTTPS है या नहीं है, उसके बाद वहाँ पे पैडलॉक है या नहीं है। अब व्हाट इज HTTPS तो मुझे समझ में आता है, पैडलॉक क्या, जस्ट सी दिस फिगर फोटो, see here we have one snapshot of the website that is irctc.co.in. see here, the first of all HTTPS is written and before HTTPS a log symbol is there. This is your padlock symbol. Okay, when you will click here you will get one information and that is, see, this connection is secure, your information for example password or credit card numbers is private when it is sent to this site. Certificate is valid, issued by Indian Railway Catering and whatever the information is here. So this is it. You must check that it is HTTPS and a padlock symbol is there. Okay, we have another example also, the Google Docs, which is being used nowadays very popularly, and a padlock symbol is also here. On clicking that symbol, again you will find that connection is secure, your information. Okay, so this is the thing. User must ensure that yes, it is safe. So the next topic which we will discuss is fraud. What is the fraud? भाई जो आप प्रॉमिस करते हैं वो आप ना करें, that is known as the fraud. Whatever you have promised, अगर आप वो नहीं करते, आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते, that is known as the fraud. And when we commit any fraud with the help of internet, means using internet, that is known as online fraud. And online fraud may occur in many forms. There are various forms of online fraud. Some main topics are that non-delivered goods, non-existent companies, stealing information, fraudulent payments, etc. तो यहाँ पे कुछ ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे कि व्हाट इज ऑनलाइन फ्रॉड, व्हाट इज एन ऑनलाइन फ्रॉड एंड हाउ इट इज डन. सो द नॉन डिलीवर्ड गुड्स एंड नॉन एक्जिस्टेंट कंपनीज, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द ई कॉमर्स कंपनी. भाई आपको क्या है, आपने किसी प्रोडक्ट के लिए पे किया एंड इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉन डिलीवर्ड गुड्स. आपको एक डेट तो प्रॉमिस किया गया बट उस डेट पे आपको कोई चीज़ ही नहीं आई, कोई भी प्रोडक्ट आपको आया ही नहीं, या फिर आपने जो ऑर्डर किया था उसके बदले में कुछ और आ गया. बीच में एक बार हुआ था
the people used to order the Apple phone on the online websites and they used to get the stones in spite of that. वो एप्पल फ़ोन ऑर्डर करते थे, उसके बगल में उसके बदले में उनको क्या था, डमी मिलता था या फिर कोई पत्थर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आती थी. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नॉन डिलीवर्ड गुड्स. सेकेंड पॉइंट क्या, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज मीन्स द कंपनी दैट यू आर पेइंग और यू आर डीलिंग विद दैट इज़ टोटली वर्चुअल. वो है ही नहीं कहीं पे, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. वो जस्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट कर लिया और वो सेल कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम चीज़ों को सेल करेंगे, आपसे पेमेंट लिया और चले गए. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रॉड. स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या फिर वो जो वेबसाइट बनी है वहाँ पे आप डेटा शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं. आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, चीज़ों को ले रहे हैं. आपकी सोशल आइडेंटिटी को उठा रहे हैं, मीन्स आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी को उठा ले रहते हैं, वो स्टील कर रहे हैं और वो उसको यूज़ कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन. मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन. वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. एंड द फ्रॉडलेंट पेमेंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड को क्लोन कर लिया गया या आपके डेबिट कार्ड को क्लोन कर लिया जाए और उससे ऐसे पेमेंट किए जाए जो आपने इनिशिएट ही नहीं किया. वट एवर द पेमेंट इज बीइंग डन, दैट इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड बाय यू. दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फ्रॉड. आपका कार्ड यूज हो रहा है और पेमेंट हो रहा है, आपको पता नहीं है. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्रॉड. ओके, सी while the first two types of the frauds, the first two types means this is non-delivered goods and non-existent companies. These are the type of, and they can be countered by setting up official bodies. See, this type of frauds can be countered by setting up official bodies ensuring the validity of e-commerce companies and promised delivery of goods. तो ये जो दोनों frauds थे कि non-delivery of goods and नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, हाउ वी कैन स्टॉप दिस. सो दे कैन बी काउंटर्ड विद हेल्प ऑफ बाय सेटिंग ऑफिशियल बॉडीज, जो ये इंश्योर करेंगे कि जो भी कंपनी यहाँ पे है जो सेल के लिए अवेलेबल है वो एक वैलिड कंपनी है. तो अगर वो कंपनी वैलिड है, अगर वो, तो डेफिनेटली दे विल डिलीवर द गुड्स. ओके, एंड द लास्ट टू टाइप्स ऑफ द फ्रॉड्स आर मोर फ्राइटनिंग, दे आर मोर डेंजरस. ओके, जो लास्ट टू टाइप्स के जो फ्रॉड्स हैं आपके, दे आर मोर डेंजरस हियर. द लास्ट टू टाइप्स ऑफ द फ्रॉड्स, द फ्रॉड्स आर मोर फ्राइटनिंग. द एग्जांपल ऑफ सच फ्रॉड्स इंक्लूड द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड द आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स. ओके, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या होता है, आपका क्रेडिट कार्ड यूज किया जा रहा है. इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑफ द यूजर आर स्टोलन फ्रॉम हिज और हर ऑनलाइन एक्टिविटीज. कोई ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, तो वहाँ से क्या हुआ, डेटा को स्टील कर लिया गया, आपकी इन्फॉर्मेशन को उठा लिया गया. एंड देन सम पेमेंट फ्रॉड्स आर कैरिड आउट विद द स्टोलन इन्फॉर्मेशन. अब आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, दिस इज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. मतलब आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल को किसी जगह से, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी से फेच किया गया, वहाँ से निकाल के, और फ्रॉडलेंट पेमेंट्स में कुछ पेमेंट किए जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यू डू नॉट नो अबाउट द पेमेंट्स. दैट इज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. अब आइडेंटिटी थेफ्ट की जहाँ तक बात आती है, तो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? इट इज बाय स्टीलिंग समवन एल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी. भाई आप फेसबुक यूज करते हैं, आप जीमेल यूज करते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट यूज करते हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका यूजर आईडी है, दैट इज योर आइडेंटिटी. भाई आपका कंप्यूटर तो आपसे नहीं पूछता ना कि हाँ आप ही हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ तो आप इसको यूज कर सकते हो. आप जस्ट यूजर नेम टाइप करते हैं और पासवर्ड टाइप करते हैं, आपका अकाउंट खुल जाता है. इफ दैट आईडी एंड पासवर्ड इज बीइंग स्टोलन बाय समवन एल्स, कोई और आपके उस आईडी और पासवर्ड को चुरा लेता है, तो वो भी अगर लॉग इन करेगा तो ही विल बी एबल टू एक्सेस योर अकाउंट ना डायरेक्टली. सो दिस इज द आइडेंटिटी थेफ्ट. मतलब कोई और आपके अकाउंट में लॉग इन करके, यानी कोई और आप बन के आपके बिहाफ पे पोस्ट कर रहा. वो पोस्ट कुछ भी हो सकता है. भाई किसी तरीके के दंगे को भड़काने के लिए कुछ पोस्ट कर दिया, राइट्स फ्यूलिंग होगी, राइट्स फ्यूलिंग, या फिर किसी तरीके का र्यूमर है, कोई ऐसी चीज़ है जो है ही नहीं, वो भी आपके अकाउंट से, आपके बिहाफ पे, आपके अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है. जब आपके अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है तो जो आपके जानने वाले हैं, वट एवर द योर कनेक्शंस, बट दे विल थिंक यस, या आपने दिया. और अगर आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको वो लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, काफ़ी डेंजरस चीज़ होने वाला है, क्योंकि आपने जो चीज़ पोस्ट ही नहीं किया वो आपके अकाउंट से पोस्ट कर रहा है. सो दिस इज द आइडेंटिटी थेफ्ट. मीन्स कोई और आपकी अकाउंट को यूज करके, मतलब आप बन के चीज़ों को पोस्ट कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस.
एंड द मेजर्स टू स्टॉप दीज फ्रॉड्स में इंक्लूड, कैसे इन्हें हम स्टॉप कर सकते हैं, अ मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी दैट इंश्योर्स द sanctity of e-commerce company and delivery of goods or services as promised. एक ऑफिशियल बॉडी हम सेटअप करें जो ये इंश्योर करे कि जो भी ये कंपनी प्रॉमिस कर रही है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो उस पर फुलफिल कर रही है. सेकेंड क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय ई-कॉमर्स साइट एंड पेमेंट गेटवेज टू प्रिवेंट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म यूज किया जाए, हाई इंक्रिप्शन यूज किए जाए, सिक्योरिटी मेजर्स यूज किए जाए, सो दैट जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट गेटवे और कंपनी दोनों को ये करना है कि जो भी आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट के लिए वो डेटा स्टील ना हो सके, कोई और यूज ना कर सके, वो सिर्फ आपके और उस कंपनी के बीच में ही रह जाए. मीन्स आपके बैंक के पेमेंट गेटवे का मतलब आपका बैंक का वेबसाइट, आप वहीं भी पे करते हैं. थर्ड इज ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड द सेफगार्ड्स ऑन द स्टीलिंग ऑफ यूजर्स डेटा टू थर्ड पार्टीज. एक ऑफिशियल गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो भी डेटा कंपनी कलेक्ट करती है यूजर से उसको कैसे सेव करके रखना है. अभी क्या है कि कोई इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो हर कंपनी अपने अपने तरीके से डील करती है. वो डेटा आपसे उठाती है, डेटा सेल करती है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बिग बिजनेस, मीन्स सेलिंग डेटा, यूजर डेटा. सो एक ऑफिशियल गाइडलाइन इसके लिए भी होना चाहिए. Now, ensure safe sites while entering crucial information. जब भी आप अपना कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, प्लीज इंश्योर दैट यू आर एंटरिंग ऑन अ करेक्ट वेबसाइट. HTTPS है, पैडलॉक है, ये जरूर होना चाहिए. अगर नहीं है तो प्लीज डू नॉट शेयर योर डेटा. यहाँ पे भी वही चीज दिखाया हुआ है जो भी हम लोगों ने देखा. तो यहाँ पे देखिए पैडलॉक तो हमने दिखाया था, जहाँ पे पैडलॉक नहीं हुआ वहाँ पे क्या होगा, आई का सिंबल बन के आता. ओके, आई लिखा होता है ब्रैकेट में, एंड जब आप उस पर क्लिक करते हो तो लिख के आता है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर. इट मीन्स दिस इज द प्लेन HTTP साइट. ऐसा नहीं है कि जितने भी इनसिक्योर कनेक्शन है वो सिर्फ HTTP ही है, वो कोई और भी वेबसाइट हो सकती है. तो इफ देयर इज नॉट एनी सिक्योरिटी मेजर, तो आपका ब्राउजर आपको इन्फॉर्म करता है कि ये आपका क्या है, सिक्योर नहीं है. सो टू थिंक बिफोर शेयरिंग एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन दैट वेबसाइट. जब भी आप HTTP की बात करते हैं, दिस इज एन इनसिक्योर कनेक्शन. जब भी आप HTTP यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योर कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता. बट देयर आर मल्टीपल मोर प्रोटोकॉल्स ऑल्सो. अगर आप FTP यूज कर रहे हैं वहाँ पे तो खैर आपसे इन्फॉर्मेशन ली नहीं जाती, बट स्टिल बी वेरी वेरी श्योर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर दैट HTTPS is being used. Now, what is secure data transmission? Secure data transmission is whatever the data you are sharing over internet that is safe. मतलब आपने यहाँ से जिसके लिए भेजा, सपोज आप यहाँ से कंपनी ए को डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो डेटा यहाँ से सीधा कंपनी ए को ही जाए, बीच में किसी और को एक्सेसिबल ना हो. दिस इज द सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. एंड टू इंश्योर दिस सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन देयर आर मल्टीपल, there are various methods, various techniques. Some of them are SSL, secure data transmission. SSL means secure socket layer protocol, and this is a standard security protocol which establishes encrypted link between the web server and the browser. भाई आपके ब्राउजर, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, यहाँ से सर्वर जहाँ पे आप डेटा सेंड करेंगे, किसी सर्वर पे डेटा जाता है, तो आपके और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या करता है, एक इनक्रिप्टेड लिंक स्टेबलाइज करता है ये प्रोटोकॉल. तो आप जो भी डेटा भेजते हैं वो इनक्रिप्ट होके जाता है. इट मीन्स अगर कोई इंट्रूडर उस डेटा को एक्सेस भी करना चाहे तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज टू इनक्रिप्ट द डेटा वेरियस प्रोटोकॉल्स आर बीइंग यूज्ड. तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, यूजर के पास वो प्रोटोकॉल है कि नहीं उस इंट्रूडर के पास. तो इस तरीके से डेटा ऑलमोस्ट सेफ तरीके से आपका डेटा यहाँ से वहाँ डिलीवर कर दिया जाता है. द यूजेज ऑफ SSL technology ensures that all data transmitted between the web server and the browser remains encrypted and hence remains safe. So encrypted data are trusted as the safe data. Next is the data encryption. What is data encryption? So encryption means जो आप डेटा सेंड करते हैं उसको एक एल्गोरिथम की सहायता से एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. Whatever the text you have given, whatever the information you have given, उसको कन्वर्ट करके एक दूसरे फॉर्म में, एक encrypted फॉर्म में, साइफर टेक्स्ट भी क्रिएट हो सकता है. तो that is your encryption, that is your encoded data. And encrypted data when sent over internet is hard to steal and hence is safer. भाई आप जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वही एल्गोरिदम से आप उसको डिकोड कर सकते हैं. तो देयर आर वेरियस एल्गोरिदम्स. भाई जो इंट्रूडर है, जो हैकर है, अगर उसके पास वो एल्गोरिदम का इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा इज 100% सेफ. और आप कौन सा यूज कर रहे हैं, इतना टाइम तो नहीं होता कि वो उसको एरर एंड ट्रायल मेथड से उसको डिकोड कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज द सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. यूज ऑफ सेफ प्रोटोकॉल्स में जब भी हम
डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वी मस्ट चेक दैट जो भी प्रोटोकॉल है उसका सिक्योर वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आप फाइल ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं सिर्फ तो FTP सिक्योर वर्जन भी है। आप HTTP कोई भी सेंसिटिव डेटा शेयर कर रहे हैं तो आप ये चेक कीजिए वहाँ पे HTTPS यूज़ हो रहा है। एंड अनदर प्रोटोकॉल सिक्योर सेल प्रोटोकॉल ऑल्सो देयर। तो मेक श्योर कि आप अगर कंपनी हैं तो मेक श्योर कि आप इस प्रोटोकॉल्स को यूज़ करें, और अगर आप कस्टमर हैं तो आप चेक करें कि ये प्रोटोकॉल वहाँ यूज़ हो रहा है या नहीं। सो द सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन इज ऑल्सो क्लियर। द नेक्स्ट इज here secure data transmission means applying enough technical safeguards so that data travels safely to its target without being compromised or eavesdropped. I think it is clear to you all कि जब भी हम सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं इट मीन्स कि कुछ टेक्निकल सेफगार्ड्स, कुछ ऐसे टेक्निकल मैकेनिज्म अप्लाई किए जाए जिससे जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाए, ओके, आपके टारगेट तक विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब वो डेटा चेंज भी ना हो। दो तरीके के अटैक होते हैं। एक तो क्या करते हैं, उन्हें डेटा अगर नहीं मिल रहा, अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे तो क्या करते हैं, वो डेटा को ही मॉडिफाई कर देते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज देम। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एंड दे इवेस्ट, वो डेटा को स्टील कर लेते हैं, दे यूज डेटा। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए। पता ना, जैसे आप किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, चलो हम नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करोगे, हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे या हम उसे मैनिपुलेट कर देंगे। तो ये भी देखना है कि आप जब सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी ना हो पाए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा एकदम सिक्योर मैकेनिज्म बना दिया कि जो भी डेटा जाएगा वो एकदम सेफली चला जाएगा, उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसको कोई चेंज तो कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अदर एथिकल इश्यूज, भाई जब भी आप बात करते हैं इन द प्रेजेंट एरा वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। और जो इंफॉर्मेशन है दे आर नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होने चाहिए। फिर कुछ एक प्लेगरिज्म है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स है, वट एवर द प्रॉपर्टी यू हैव इन टू योर कंप्यूटर मीन्स इन द डिजिटल फॉर्म, दैट इज नोन एज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। सो उससे भी रिलेटेड कुछ राइट्स होने चाहिए, क्योंकि जो सिंपल आपके जो प्रॉपर्टी के जो रूल्स हैं वो आपके डिजिटल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होते। दैट्स वाई सम रूल्स आर ऑल्सो हियर एंड we must discuss that. So first of all, the intellectual property right. What is this? So intellectual property right are the rights of the owner of the information to decide how much information is to be exchanged, shared or distributed. Also, it gives the owner a right to decide the price for doing exchanging or sharing, distribution. मतलब intellectual property right ये है कि आपका जो इंटेलेक्ट मतलब जो आपकी बौद्धिक क्षमता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय योर थॉट्स, बाय योर थिंकिंग पावर, बाय योर माइंड, बाय योर नॉलेज, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आप कोई नॉवेल लिखते हैं, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट इज योर थिंकिंग, वो आपके दिमाग से आया। So that is also intellectual property. तो intellectual property rights ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑनर है, मतलब जिसने ये प्रॉपर्टी क्रिएट की है, वो डिसाइड कर सके कि कितना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना है। मतलब वो कितना इंफॉर्मेशन किस कॉस्ट पे देना चाहते हैं, फ्री में कितना देना चाहते हैं या फिर कितना पोर्शन देने का कितना पैसा लेना चाहते हैं। मीन्स वट एवर दे वांटेड टू चार्ज, दैट इज द राइट ऑफ ऑनर। शेयरिंग होगी कि नहीं उस डेटा की, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या है। सो वट एवर द कंडीशंस दे मस्ट बी गिवन अथॉरिटी, मीन्स ऑनर इज गिवन अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन दिस। सो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, सो टू इंश्योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट कॉपीराइट, you may get patent or you may get trademark. ठीक है, पेटेंट मीन्स आपने कोई इनोवेटिव आइडिया निकाला, यू कैन गो फॉर द पेटेंट। कि जैसे आपने कोई एक रिसर्च किया कि आप जो है पानी से, वाटर से आप फ्यूल बना सकते हैं, दिस इज न्यू आइडिया, दैट इज योर रिसर्च। तो आप उसके ट्रेडमार्क के लिए जा सकते हैं, पेटेंट के लिए जा सकते हैं कि अब आगे से जो भी इस आइडिया को यूज करना चाहता है वो आपसे परमिशन लेगा, दैट इज योर पेटेंट। आप कॉपीराइट करा दें
तो वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू हैव, जैसे ये बुक आपकी सुमिता अरोरा धनपत राय पब्लिकेशन से है, सुमिता अरोरा जी राइटर है। तो ये एक कॉपीराइट है इनका, इन्होंने पहले लिख रखा बुक में कि इस किताब के को किसी भी दूसरे फॉर्म में रिपब्लिश करना का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता। ठीक है, अभी क्या मैं इस बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बुक की आप स्नैपशॉट हम देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज माई बुक। अगर हम ये कहते हैं तो दिस इज द कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। उन्होंने तो ये नहीं दिया, दिस बुक इज गिवन टू अस जस्ट फॉर स्टडी। ये स्टूडेंट को इसी परमिशन के साथ मिला कि आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। अब आप इसके नोट्स को क्या कीजिए, सेम चीज को आप टाइप कर दीजिए दूसरे फॉन्ट में और कहिए कि ये मेरा डेटा है। नो, व्हाटएवर द कंटेंट इज हियर यू कैन नॉट यूज दैट कंटेंट सेम वे। ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके कॉपीराइट मटेरियल्स आपको सपोर्ट करते हैं। देन ट्रेडमार्क्स, आपने देखा होगा ना, ये जो हर ब्रांड की एक लोगो होता है, आप उस लोगो को देख के पहचान जाते हैं। दैट लोगो इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडमार्क। वो उनके व्यापार का चिन्ह है। ट्रेडमार्क मीन्स द सिंबल ऑफ देयर ट्रेड। आप उस सिंबल को देख के पहचान जाते हैं। सो दिस इज, आप ये करके भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब बात करते हैं हम प्लेगरिज्म की। प्लेगरिज्म क्या होता है? So plagiarism is stealing someone else's intellectual work and representing it as your own work without citing the source of the information. मतलब आप किसी और की क्रिएशन को उठाते हैं और उसको ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि वो आपका क्रिएशन है। दिस इज द प्लेगरिज्म। जैसे ये बुक आपकी सुमिता अरोरा जी की बुक है, अब मैं कहूँ कि नहीं दिस इज माई बुक, दिस इज रिटन बाय मी, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं राइटर का नाम लिखा नहीं है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेगरिज्म। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करना ही चाहते हैं ऐसे, इफ यू हैव टू यूज, देन व्हाट यू हैव टू गिव द रेफरेंस कि दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम पर्टिकुलर आर्टिकल और पर्टिकुलर बुक रिटन बाय द पर्टिकुलर ऑथर। जैसे हम इस बुक को हम यूज कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू द धनपत राय पब्लिकेशन एंड द सुमिता अरोरा that we are using your book, your written contents for our studies, for our knowledge, whatever thing. तो this is the plagiarism कि आप किसी दूसरे के कंटेंट, दूसरे का क्रिएशन को अपना बता के यूज करते हैं, that is the plagiarism. That can be anything, that can be idea, literary work or academic work, etc. Anything that can be. So any one of the following acts would be termed as plagiarism. इसमें से जो काम है उसको हम plagiarism कहते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? Using some other author's work without giving credit to author. भाई किसी और का लिखा हुआ हम यूज कर रहे हैं और हम उन्हें क्रेडिट भी नहीं देते। Using someone else's work in incorrect form than intended originally by the author or created. मतलब उन्होंने जिस फॉर्म में उसको लिखा है हम उसके फॉर्म को मॉडिफाई करके यूज करें, that is also the plagiarism. जैसे इन्होंने ये फॉन्ट लिखा, ये डिजाइन किया, हम क्या करें, इसको मॉडिफाई कर दें कि भाई देखिए फॉन्ट चेंज है, ये है वो है, बट कंटेंट तो इन्हीं का है, तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज द प्लेगरिज्म। मॉडिफाइंग और लिफ्टिंग समवन प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एटसेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क। भाई किसी का गाना आप यूज करते हैं, किसी की बनाई हुई ट्यून को आप यूज करते हैं और आप उनको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द प्लेगरिज्म। ओके, गिविंग इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने ये किताब ली, हमने इसको पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि हम ये कहते हैं कि ये बुक जो है सुमिता अरोरा जी ने किसी और ने लिखी है, हम क्या करें, वी आर गिविंग इनकरेक्ट रेफरेंस, दैट इज ऑल्सो प्लेगरिज्म। भाई हम अपना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को क्रेडिट दे रहे हैं, बट जो एक्चुअल ऑथर है हम उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द प्लेगरिज्म। ओके, फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और acknowledging the contribution of others in a collaborative effort to which you were also part of. जैसे आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं और आप क्या करें, सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो द प्लेगरिज्म। ओके, हाउ नॉट टू प्लेगरिज्म, कैसे आप डिफाइन करेंगे ये प्लेगरिज्म नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट गिव क्रेडिट, आपको क्रेडिट देना चाहिए जब भी आप किसी का आइडिया, किसी के ओपिनियन या किसी की थ्योरी को यूज करते हैं। यू मस्ट गिव व्हेनेवर यूज द कोटेशन ऑफ अनदर पर्सन, आप किसी का कोटेशन यूज करते हैं, किसी का आइडिया, किसी का ओपिनियन, विचार या थ्योरी यूज करते हैं, तो यू मस्ट गिव क्रेडिट। ओके, मीन्स अगर आप यूज करते हैं तो गिव रेफरेंस, आप क्लियरली बताइए कि आपने पर्टिकुलर यहाँ से या पर्टिकुलर इस ऑथर के इस
आर्टिकल से या इस बुक से इस चीज को लिया। द प्लेगरिज्म इज ऑफेंस, ठीक है। ये नॉट ओनली द सिविल ऑफेंस, इट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो। मतलब इस पे आपको जो है सिविल केस भी चलेगा और आपको क्रिमिनल केसेस चार्जेस भी लगाए जाएंगे अगर आप प्लेगरिज्म में पकड़े जाते हैं। If plagiarism involves copying not only idea but also a substantial portion of a copyrighted work without attribution and without permission, it would amount to both copyright infringement and the violation of the special right of the author to be credited. भाई जिसका एक्चुअली वर्क था आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया तो उसका भी पनिशमेंट है। तो आपको इसके लिए क्या हो सकती है, आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी जाना, जेल भी जाना पड़ सकता है। सो दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। Both civil suit and criminal charges are punishable offenses and amount to fine and penalties. So plagiarism is dangerous, so please avoid this. Thanks. In this video class we will discuss only this, and the next we will discuss the remaining portion of the chapter.